Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me, and in the meantime, do let me know if you can hear me audibly, if my voice is audible, and plus where are you logging from? Are you from Pakistan, are you from abroad, or are you from any other province or district of Pakistan? So जो कोई जहाँ कहीं से भी है फ़ौरन मैसेज बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, और साथ में मुझे ये भी बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज टॉपिक. So I'm just going to go on different platforms and see whether I'm live over there or I can see myself live over there. Okay, so yes, I can see myself live, and I'm waiting for you guys. So whoever joins me, I'm just going to start with the session. Right. So I'm just going to wait for 1 or 2 seconds because there's Azan prayer going on, and so I'll wait for it to finish. Okay. So what do you think about today's topic? आज का टॉपिक तो बहुत easy है, but then again there are many people who would simply not know what I mean by this topic, because there was someone who was asking me, giving back what? Walaikum Assalam, Qazi Nadeem Ashraf. So this is for you to guess what am I going to talk about, what do I mean by giving back. ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आपको पता हो तो यू विल बी एबल टू ग्रैस्प द होल टॉपिक. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से गिविंग बैक. So you need to understand this concept of giving back. Okay, so if you have any ideas या आपके जहन में कोई thoughts हैं about giving back, what do you think I mean by giving back? या आपके जहन में कोई है कि किस context में मैं बात करी हो सकती हूँ. So you're more than welcome to give me your feedback and write down your feedback in the comment box as well. So जब तक आप ये लिखते हैं तो I'm just going to start with this session, and I'm just going to start with this simple thing कि every one of us, we need to understand the concept behind giving back. So जब giving back की हम बात करते हैं, it is basically contributing towards the society, or it can be in any form. It can be when you are contributing back to the society, it can be in the form of you are actually grateful for what you have received over the years. So उसी के जवाब में when you are grateful for something, you give back. So ये जो giving back वाला concept है, this comes from the thing कि भाई you yourself have fulfilled your purpose. You over the years आपका purpose जो है fulfill होता रहा है, and you have achieved your goals, and now it's your time to give back to the community, या give back to the society, या give back to your country. So this is what today's topic is about कि how are you going to, what are those things जो कि आप करते हैं तो they are also included in giving back to the community. And there are different areas. हमेशा जो है आमतौर पे जो लोग हैं वो देखते हैं कि भाई अगर आप जो है पैसे दे रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग, गिविंग बैक टू द सोसाइटी. जबकि जो है इसमें सब चीज़ें जो है इंक्लूडेड होती हैं. इट्स नॉट जस्ट मॉनेटरी, इट्स मैनी थिंग्स इंक्लूडेड, एंड इट्स ऑल पैकेज्ड अप. आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना कंपैशन दे रहे हैं, आप अपने जो है केयर दे रहे हैं, आप अपनी एम्पैथी दे रहे हैं. whatever you're doing, this is all giving back to the community. क्योंकि whatever you're giving, it's contributing towards making the society more productive, yeah, it's contributing towards inspiring the youth at large, impacting the society at large. So आप जो भी contribute कर रहे हैं, आप जो भी अच्छा जो है role play कर रहे हैं towards the betterment of the society, that comes within the category of giving back. So this is the concept कि भाई what I mean by giving back, और giving back का क्या concept होता है. एंड देन इसमें जो है जिस तरह मैंने आपको बताया, देर आर मेनी थिंग्स. इसमें एक्ट्स ऑफ चैरिटी है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है, मेंटोरशिप है, और मे बी
even creating opportunities for others. This is also giving back to the community. Then अगर हम बात करें why does giving back to the community matter, क्योंकि इससे जो है जो सबसे बड़ी चीज़ है, it fosters community growth and progress. So इससे जो है like whatever knowledge you have, whatever skills you have, when you are teaching, yeah, when you are imparting something good, like if I'm doing these sessions, so it is again a way of giving back to the community what I have learned over the years, through experiences, through personal experiences, through professional experiences, through different educations, through different certifications, yeah, different trainings. So वो सब जो है I'm in that position of giving back. In fact, I'm in the position of sharing those things with you, क्योंकि I myself have experienced those things first-handedly. So अब if I'm sharing it with you, so I'm transferring those skills to you people. So ये जो skills हैं या ये जो sessions हैं या whatever knowledge or whatever experiences I'm sharing, so I'm sharing as a first person who has experienced these. अब ये जब आपके साथ शेयर होंगे तो you also would be in that position. It does not matter आप अपनी स्टेज, अपनी ज़िंदगी में किस स्टेज पे हैं, so whatever stage you are in your life, so ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आगे जाकर या पहले गुजरी होगी. So you are able to resonate with these things, चाहे आप जिस भी स्टेज में हैं कि okay yes when I was in this stage I did face this thing. Now you know what, जब हम लाइफ में जो है लाइफ गुजार रहे होते हैं, वी आर कंटिन्यूसली लिविंग लाइफ. अब चाहे वो जो है पास्ट मोमेंट्स हो रहे हैं, पास्ट मोमेंट्स के साथ आप रेजोनेट कर सकते हैं, जो प्रेजेंट आपके सर्कमस्टांसेस हैं या सिचुएशंस हैं, उसमें जैसे जैसे आप गुजर रहे हैं तो यू आर गेटिंग फॉर those solutions, you are finding solutions to different problems. So वो लोग जो आपके साथ जो है रेजोनेट कर रहे हैं, वो लोग उस पोजीशन में होते हैं कि वो उस सूरत हाल से गुजर चुके होते हैं. लाइक आई माइट बी एन एमेचर, बट जो लोग जो है मेरी वाली सिचुएशन में थे when they were at my age, तो they would be in a position to shower some kind of guidance, some kind of path या सम काइंड ऑफ एडवाइस टू मी कि भाई आप जो है इस डायरेक्शन में जाएं, या अगर आप ये जो है इस तरीके से ये चीज़ करें तो ये ज़्यादा आसानी से आपके लिए आप इसको हैंडल कर सकते हैं. सिमिलरली जो किसी और स्टेज ऑफ लाइफ में है, एंड इफ़ आई हैव बीन इन दैट सूरत हाल और दैट सिचुएशन, वट एवर एक्सपीरियंस आई गेन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, या किस तरीके से आई came across that challenge, जो भी challenge था, and I faced it, so I'll be in the position to mentor those people, yeah, offer my guidance to those people. So this is how एक जो है ना chain जो है work करती है. This more or less this acts as a chain reaction. So इसी तरीके से जो है ना, when you have something to offer to the community, you keep on sharing, you keep on adding value to people's life. So it's not just like कि आप कहानियाँ बना रहे होते हैं. These are real life experiences, these are real life solutions जिनसे जो है आप अपनी डे टू डे लाइफ में go through करते हैं. You are faced with many multitude of problems and it's totally up to you कि आप उसको किस तरह handle करते हैं. So the more successful you are in gauging at a problem and finding solution to it, the more you are adding value to people's life. और plus आपकी अपनी लाइफ भी improve हो रही होती है क्योंकि you are gauging, growing, scaling side by side. So this is when I say why is it important to give back. This is the very reason कि whatever you are doing, whatever stage you are in, there might be others जो उस stage से जो है गुजर रहे होंगे, या they might be in that stage. So whatever experiences you have shared and evolved out of, you are in that position to mentor those people, and they can learn out of your experience. Okay, let me take your comments side by side. Musa Tunio, thank you so much for joining and watching. Sajar Rasool, thank you so much for joining and watching. And Hisham Sarwar Saab, thank you so much for joining and watching. Okay, and if anyone wants to add anything into this session, please, you are more than welcome to add, since it's an interactive session and I always like people to add their own life experiences and comments, whatever they are. So you're more than welcome to do that. Okay, so this is the number one thing, कि by giving back, it fosters community growth and change and progress. Then at the same time, it cultivates a sense of fulfillment.
अब वो फुलफिलमेंट कुछ भी हो सकती है, लाइक you might just be happy in sharing your experiences. Like it gives me really happiness when I'm sharing my experiences, yeah, when I am in that position of adding value to people's life. Now when I'm interacting with you in these sessions, and the way you're giving back your feedback, and the way even after the sessions are off and you come into my inbox and you keep on giving your suggestions and keep on sharing your comments or whatever things you are going through in your life, and you are able to share that with me. So I'm able to resonate with those things, and I am able to help those who are in need. So this really gives you a sense of fulfillment, और एक आपको जो है ना sense of पर्पस का एहसास होता है. लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई आप सुबह स्टार्ट करते हैं और रात हो जाती है एंड यू फील अ वॉइड. इफ़ यू आर एबल टू हेल्प पीपल, नो मैटर वो किसी भी फॉर्म में है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लोगों की हेल्प मॉनेटरी टर्म्स में कर सकती हैं. योर टाइम, योर कंपैशन, योर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये ज़िंदगी गुजारे बगैर आप नहीं अचीव कर सकते, नहीं आ सकता. ये एक्सपीरियंस आप बुक्स पढ़ के जो है, येस इन अ वे आप लोगों के एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं, बट देर आर सर्टन एक्सपीरियंसेस यू हैव टू लिव थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस, एंड देन व्हेन यू लिव थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस you are in that position of offering valuable information and valuable time tested experiences and tips to people. So this is why I say कि giving back really matters and it's very important. So this is another thing, and then you know what, also जब आप give back कर रहे होते हैं ना, it creates a ripple effect. Now I'm sure आप में से बहुत से लोगों ने ripple effect का जो है सुना होगा. Now अगर मैं इसको जो है सिंपल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन वाटर, पानी में जब आप जो है पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, उसमें आपको जो है you see waves, you see a circle जो कि it's divided into many fold forms. That's the ripple effect. So in the same way, when you are sharing your experiences, when you are sharing your thoughts, when you are sharing valuable asset to people, तो उससे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. Those people, there are going to be people who are going to be inspired by your experiences. There are going to be people who are going to be motivated by what you have to offer. So उसका क्या नतीजा होगा, उससे जो लोग हैं who might be looking for that particular kind of motivation या inspiration, so they are going to get a lot of encouragement out of those experiences, and they are going to try to improve themselves. क्योंकि इम्प्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन. अगर मैं ये कहूँ कि भाई दरिया, पूरे दरिया को आप चेंज कर दो, तो दरिया को भी बनने के लिए कतरा कतरा करके दरिया बनता है. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम प्लेस. तो अगर आपको जो है किसी की बातें जो इंस्पायर कर रही हैं या मोटिवेट कर रही हैं, तो दैट पर्सन इज़ द रीज़न ऑफ योर चेंज इन योर माइंड सेट, योर चेंज इन एटीट्यूड. सो you are really, it really gives a ripple effect. So I'm sorry, I was digressed. मैं अपनी thoughts में चली गई थी. Okay, let me come back to my topic. Then अगर मैं जो हूँ आपको different लोगों की examples दूँ, like there are many people जिन्होंने when they achieved what they wanted in life, they were in that position of giving back. So जैसा मैंने आपको कहा, it's not necessary कि आपके पास पैसे हों तो आपने पैसे ही देने हैं. You can give it in the form of your time. अब अगर हम जो है मदर टेरेसा को देखें, तो what did she do? She did not help people in the materialistic sense, but rather she cared for them. She gave them time. और जो caring है, जो compassionate attitude है, this is something which is possessed by very few people. But जिनकी होती है, then they are the real caretakers of the world and humanity, and they do not go into these details या these things के भी अच्छा जी इसका स्टेटस है तो इसकी खिदमत की जाए, इसका स्टेटस है तो इसकी नई स्टेटस तो इसकी इतनी खिदमत की जाए. नाउ डेज अगर देखा जाए तो देर आर मैनी हॉस्पिटल्स, देर आर, आई वुड रादर से देर आर मैनी क्योंकि मेरा जो है ज़्यादा काम जो है मैंने ओल्ड लोगों के साथ किया है, एंड आई रियली फील फॉर देम. और बट देन आई ऑल्सो हैड द एक्सपीरियंस ऑफ
interacting with old homes and people looking after old people, और किस तरीके से यानी there are institutes जो कि they take hefty amounts from the caretaker family, but what they are offering to the old people, it's nothing. So वो जो compassion है, when I talk about compassion, when I talk about taking care of elderly people या spending extra time with them, या whenever you have time, even अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं तो you need to spend time with them. तो क्योंकि ये जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, बुजुर्ग लोग तो जब चले जाएंगे तो यू आर गोइंग टू फील दैट वॉइड, अगर इफ़ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सिटिंग, क्योंकि नाउ व्हाट आई सी इज़ फैमिली इंस्टीट्यूशंस डिसअपियर हो रही हैं. जो ओल्ड पीपल हैं, जो आपके घर के भी बुजुर्ग हैं, पीपल दे जस्ट गो अब्रॉड, बच्चे जो है छोड़ छाड़ के जो है चले जाते हैं, बुजुर्ग पीछे हैं, वो या तो जो है सर्वेंट्स के जो है दर पे हैं या फिर केयर टेकर्स के जो है दर पे हैं, एंड दे आर इन अ वेरी बैड सिनेरियो. और वो सूरत हाल ऐसी नहीं होती, यानी एज अ थर्ड पर्सन यू योर सेल्फ फील सो मच बैड कि भाई आपका दिल कटता है कि भाई आप उनके लिए कुछ कर सको. सो दैट्स वाई आई से कि भाई इट्स व्हेन यू गिव बैक, लाइक इवन इफ यू हैव दिस केयरिंग एटीट्यूड, like I know okay, I'm not going to talk about myself, but I have been in this situation, so I really know कि भाई जब old people होते हैं तो you need to if you have extra time you should volunteer and you should go and attend those people. और आप ये देखेंगे कि जिस तरह आप अपने वालिदैन की जो है खिदमत करते हैं, जब आप उनकी खिदमत करेंगे तो आपको एक अलग ही अंदाज का लुत्फ़ आएगा. और वो जो आपको बहुत से लोग हैं जिनको जो है ना वो एक वॉइड फील होता है, लाइक व्हेन देयर पेरेंट्स वर अलाइव एंड दे वर नॉट अराउंड. तो अगर वो किसी और के पेरेंट की खिदमत कर लेते हैं तो वो जो एक गैप होते हैं, एक जो गिराप बनी हुई होती है, एक वॉइड होता है, वो वॉइड ओवरकम हो जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज in which you can give back to the community. Then इसमें जैसा मैंने आपको बताया about Mother Teresa, she used to give her time and she cared for people. Similarly अगर जो है हम Oprah Winfrey को देखें तो she had a difficult life, but when she was she achieved her goals and she became something. तो फिर उन्होंने क्या किया, she established Oprah Winfrey Leadership Academy in I guess in South Africa maybe. So उसका मकसद क्या था? It was to empower unprivileged girls through education. So this is also a very strong hold. अगर हम educational institutions की बात करें, अपने सिनेरियो के education institutions की बात करें, तो अब ये वो वाले education institutions नहीं रहे. अब जो इधर education impart की जा रही है वो education नहीं है जो आपको ज़िंदगी में कहीं लेकर जाएगी. ये वो वाली एजुकेशन है जो सिर्फ जो है ना कमर्शलिज्म पे बेस्ड है, जिसमें जो है सिर्फ जो है पैसा लग रहा है, पैसा जाता वो आपको नज़र आ रहा है, बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा. सो उस एजुकेशन का वो जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिकल स्किल्स या स्किल्स रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि यू हैव टू सी आपका जो टाइम है वो तो गुजरा है. यू हैव टू सी कि भाई जो आगे जनरेशन्स आ रही हैं उनको आपने किस तरह सेव करना है, और उनको आप इसी तरीके से सेव कर सकते हैं कि यू नीड टू डू द बेसिक रिसर्च, और जो स्किल गैप है और जो एजुकेशन गैप है उसको फिल करें विद टेक्नोलॉजी या फिल करें विद प्रैक्टिकल नॉलेज. और वो नॉलेज आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं एंड हु आर इन दिस पोजिशन ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड हु लव टू एजुकेट एंड हु लव टू एड वैल्यू टू पीपल लाइफ. तो आपको जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत है. एंड देन अगेन आई वुड से कि भाई ऐसे लोग आपको जो है वही लोग मिलेंगे जो कि जो है ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जिसमें जो है कदर की जाती है बुज़ुर्गों की, एल्डरली लोगों की. अगर जो है प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, प्रेजेंट यूथ को देखें, तो इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स. अक्सरियत जो यूथ की है दे सिंपली डू नॉट नो कि हमारे जो एंसेस्टर्स कौन थे, क्या करते थे, या इवन जो है पेरेंट्स के पास ही टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है एजुकेट कर सकें कि ओके यस आपके नाना ऐसे थे, आपके दादा ऐसे थे, आपकी दादी ऐसी थी, आपकी नानी ऐसी थी. एंड देन देर आर सो मैनी हिस्ट्रीज. नाउ इफ़ आई नो द अदर डे काजी नदीम अशरफ, आप जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बारे में बताए थे. तो यू हैव
mashallah, very bright educational background. So Qazi Nadeem Ashraf, he has had, you know, educated parents or grandparents, and he really has given a really good education to all his children. So and he is a very wise person as well. आप इनकी सफ़ेद दाढ़ी से ही देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी वाइज है और एजेड है. सो यू नो, जब आपके घर में ऐसे लोग होते हैं तो यू लर्न फ्रॉम देम. एंड व्हाट आई बिलीव इज़, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें वी नीड टू इम्पार्ट सर्टन एक्टिविटीज़ एंड सर्टन क्लासेस, जिसमें जो है अगर जो है फैमिली इंस्टीट्यूशन लाइक दिस क्लासेस दे हैव टू फोकस ऑन फैमिली इंस्टीट्यूशंस एज वेल, क्योंकि जितना डिसइंटीग्रेट फैमिली इंस्टीट्यूशन हो रहा है ना, और कोई सिस्टम नहीं है जो इतना डिसइंटीग्रेटेड हो. सो यू हैव टू यू नो टेक अ होल्ड ऑफ योर कल्चरल रूट और अपने एथिकल वैल्यूज़ को यू हैव टू ब्रिंग इट बैक, क्योंकि अगर इसमें जो है गैप आ गया तो देन नथिंग इज़ गोइंग टू कवर. So then again, I would come to my topic कि भाई social media पे there's a lot of responsibility, and those people who are not observing that responsibility, they are going to suffer, and they are going to be the reason कि उनकी वजह से लोग suffer कर रहे हों. So if you are on social media, you have a responsibility, you have a duty. आप अगर यहाँ पर है, if I am here on social media, तो it's my responsibility कि यहाँ पर जितने भी छोटे जो है बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, इवन बुज़ुर्ग लोग भी हैं, तो आई नीड टू एक्ट एज अ ब्रिज इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम बैक टू द राइट पाथ. सो वो राइट पाथ पे तो मैं आपके कान तो नहीं पकड़ सकती, ना ही आपके कान मरोड़ सकती हूँ, बट आई कैन जस्ट say things or try to bring you in a very decent way, bring you back to your normal path, जो आप सही पाथ है जिससे आप स्ट्रे ना करें. सो यू कैन प्ले अ प्रोडक्टिव रोल इन पीपल्स लाइफ, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपके घर वालों की लाइफ है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी की लाइफ है, एंड सो फोर्थ. सो व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ बीकन ऑफ लाइट, तो उससे लोग जो है मोटिवेशन लेंगे, उससे लोग इंस्पायर करेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे, बिकॉज नो वन wants to go after dark people. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन डिटेल्स. अच्छा, फिर मैं अगर मज़ीद एग्जांपल्स की बात करूँ, अगर बिल एंड मेलिंडा गेट्स की मैं बात करूँ, तो अगेन उन्होंने भी एक फाउंडेशन जो है खोली, और उस फाउंडेशन का भी मकसद यही है कि टू एड्रेस ग्लोबल इश्यूज़ जो कि जो है पावर्टी में है, या दैट इज़ फॉर द एडिकेशन ऑफ डिजीज़ या एजुकेशनल रिफॉर्म. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि वो कर रहे हैं. देन अगर जो है और किसकी जो है एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, आप भी कुछ ऐड करें. देयर आर मैनी पीपल हु आर वाचिंग एंड यू कैन ऐड. भाई मेरा भी गला खुश्क हो जाता है और मेरे पास तो पानी भी नहीं है, तो आप लोग ही बोले, इतने आप लोग एजुकेटेड लोग हैं. येस शाम सरवर साहब, यू कैन ऐड समथिंग टू इट. एंड मोहम्मद अदील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो देयर आर मैनी पीपल हु कैन ऐड मैनी थिंग्स. कादी नदीम अशरफ, यू आर मोस्ट वेलकम. नहीं, मैं आपको बिल्कुल इनकरेज नहीं करी थी, मैं तो आपकी तारीफ़ कर रही थी. आप तो ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड है, मैं तो आपको मज़ीद मोटिवेट करती हूँ. ओके, सो यू नो व्हाट, देन देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स. आई गेस लेब्रॉन जेम्स की भी एग्जांपल्स है, मदर टेरेसा की भी एग्जांपल है, एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल. एंड्रू कार्नेगी, यस, उनकी भी एग्जांपल है. ओके, आई कैन सी मैनी पीपल एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो ये निक्की निक्की मुँह नज़र आ रहे हैं मुझे, और ज़्यादा क्लियर नहीं है कि भाई कौन कौन है. सो यू हैव टू कम डाउन, ताकि मुझे आपके मैं नाम रीड कर सकूँ. ओके, अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो देन इन द एंड आई वुड से कि भाई कौन से वेज हैं जिनमें यू कैन गिव बैक. सो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वो तो एक वे हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, दे वुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, भी कहीं फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मिल जाए. बट देखिए बात ये है कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन तो वही करेगा ना जो अफोर्ड कर सकते हैं. एंड दिस मैसेज इज़ फॉर दोज पीपल जो कि बिजनेसमैन हैं, या जिनके जो है ना बहुत ही जो है ना स्प्रेडेड बिजनेसेस हैं. सो दे कैन ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग मटीरियली. और मटीरियली भी जो है, लाइक दे डोंट हैव टू बी अलोन, दे कैन ऑलवेज हैव डिफरेंट पार्टनर्स.
या एक अलायंस बना लें या कोई फाउंडेशन बना लें एंड एवरी वन कैन फूल इन टू इट. कॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह हम जो है सदका देते हैं, इन द सेम वे अगर जो है इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, so rather than giving sadka, you can always contribute it for a special purpose. अब अगर हम जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, यू जस्ट हैव टू टारगेट एन इशू और उस इशू पे जो है यू कैन पूल फंड्स या यू कैन मेक अ फंड या यू कैन मेक अ फाउंडेशन. ओके यस, दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, हमें इसको डील करना है. देन यू हैव अ फंड फॉर दैट एंड यू कैन ऑन योर ओन rather than looking for international NGOs या NGOs की तरफ आप देखें या you start looking towards the government के भी वो कुछ आपको फंड करेंगे क्योंकि उनके अपने खाते होते हैं. so I'm not going to touch the government topic. मुझे अपनी जान नहीं, मुझे अपनी जान की अजीज़, मुझे अपने इर्द गिर्द वालों की जान अजीज़ है. since I have my whole family it's in the bureaucracy, so at times I really have to ziplock myself. Otherwise I would just spit out everything, but then I don't want कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो. So you know what, you can have these funds और domestically आप ये funds बना सकते हैं, आप alliance करके बना सकते हैं. You can always have good partners जिनके साथ आप वो fund बनाएं and then you can also develop different apps और आप जो है ना you just pinpoint that particular issue और फिर issue के बुनियाद पे जो है ना you can distribute the money. Similarly, there are many other issues. और इस ये the model is very similar. Every other model it's very similar. अगर international NGOs को देखें या international organizations को देखें तो वो भी यही करते हैं. उनका एक मॉडल होता है, it's just like a template. उस टेम्पलेट में बस आपने इश्यूज डालने हैं और फिर अपनी फीलिंग्स वगैरह करनी है एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो there has to be one thing कि भाई people can say okay yes पाकिस्तान में ऐसा फंड मौजूद है या पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरीके से cater for करी है. राइट नाउ बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी बट देन वो जो है मंजर आम पे नहीं आती क्योंकि नो वन नोस अबाउट देम. देयर आर वेज यू नीड टू ब्रांड योर सेल्फ क्योंकि इफ़ यू आर ऑफरिंग सर्विसेज तो इन द सेम वे आपको अपना आप को भी ब्रांड करना है. तो जब आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे तो लोगों को पता चलेगा. दैट्स व्हाई आई से कि यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल, यू हैव टू कनेक्ट विद दी लाइक माइंडेड पीपल, यू हैव टू नो व्हाट दे आर डूइंग, उनके क्या गोल्स हैं. अगर उनके गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं देन कोलैबोरेट विद देम, कनेक्ट विद देम. इसी तरीके से आप सब मिलकर तरक्की कर सकते हैं और जब आप तरक्की करेंगे तो मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा. सो अनदर थिंग, जिस तरह मैंने बताया कि टाइम एंड एक्सपर्टीज़ इट ऑल्सो काउंट्स अ लॉट. आपका टाइम बहुत मैटर करता है, आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत मैटर करती हैं. वो अगर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, नेवर थिंक कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी वेस्ट की है या आपने अपनी ज़िंदगी से कुछ लर्न नहीं किया या आपकी जो लाइफ है या आपका जो टाइम है, आपका जो वैल्यू आप सीख चुके हैं वो किसी की लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता. तो ये जो सोच है ना ये अपने जहन से निकाल दें. जब आप लोगों में बैठते हैं ना तो there are people who want to listen to what you have to add क्योंकि they know कि you have lived that life. आप अगर हर चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते तो there would be certain areas जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और जब आप बोलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं भाई बंदा जो है ना बात सही कर रहा है, बंदे को जो है एक्सपीरियंस है, उसने कुछ ज़िंदगी में देखा है तो वो एक्सपीरियंस पे बात करे. इस तरह हवा में नहीं बातें की जा सकती. हवा में तो खैर एक्टर्स ही बातें कर सकते हैं या स्क्रिप्ट राइटर्स ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते. हमसे तो जो है स्क्रिप्ट भी नहीं की जाती, हमसे तो जो है जो मुंह में आता है बस बोल दिया. द अदर डे देयर वाज समवन हु वाज सेइंग he was saying something I did not agree with it and I am simply not in the habit of saying वो एक जी हजूरी वाला मिजाज होता है. I don't have that attitude, so I just say what I have at the top of my mind. वो अब अगले को अच्छा लगे या बुरा लगे. तो ही वॉज रियली एंग्री एंड ही सेड कि भाई आपके साथ यही मसला है, आप बात नहीं सुनती हैं इसीलिए आप इस हाल में हैं. तो मुझे तो गुस्सा ही नहीं आया, मुझे तो उल्टा हंसी आ रही थी कि भाई देखो कि भाई आप ना एग्री करो तो कैसे कैसे ना आपको अलकाब तो मिलते हैं. बहरहाल देयर आर एज आई से देयर आर ऑलवेज टॉक्सिक पीपल. तो आपने अपने आप को टॉक्सिक लोगों से अलूफ रखना है क्योंकि जितना ज़्यादा आप टॉक्सिक लोगों से अलूफ रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने काम पे फोकस कर सकेंगे एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव.
तो कोई आपको जो भी कहे जस्ट एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो सही कह रहे हैं। और अगर कोई सही नहीं कह रहा तो आपने टेंशन नहीं देनी, अपने सर में दर्द नहीं करनी, दवाइयाँ आपने नहीं भागनी। सो जस्ट रिमेन काम। जब आप काम रहेंगे तो अगलों को खुद समझ आ जाएगी कि भाई नहीं, इन पर कोई असर नहीं होता, बाकी इनका असर नहीं होता। अच्छा, देन अगेन आप देयर आर अदर वेज टू गिव बैक, दैट इज़ बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो है यू आर दैट क्रिएटिव ऑफ पर्सन जो कि डिफरेंट है रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो बी दैट पर्सन और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, अगेन लोग जो है आप they would come together, they would collaborate and they would want to do avail those opportunities. Now there are so many people who are doing this. There are different social platforms जिसमें जो है when we talk about Facebook, जब Facebook की हम बात करते हैं या हम ये बात करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए, तो जब आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो उनमें भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, आई वुड ऑलवेज से कि भाई LinkedIn is the best social platform, not a social platform, it's more of a professional platform. तो वहाँ पर आपको जो है ना टेढ़े मेढ़े लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ सीरियस प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। सो अपना LinkedIn पे प्रोफाइल लाजमी बनाएं। देन देर आर सर्टन अदर थिंग्स जो कि आप जो है कर सकते हैं, लाइक यू नीड टू हैव अ रिज्यूमे विच इज़ स्किल बेस्ड, क्योंकि और स्किल्स भी वो जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर, लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग समवेयर या आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो योर रिज्यूमे मस्ट हैव दी डेटा स्किल्स विच आर रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन। क्योंकि अगर हम CV की बात करें तो आमतौर पर लोग CV और रिज्यूमे को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जबकि रिज्यूमे और CV में फ़र्क होता है। रिज्यूमे में जो है यू हैव टू बी मोर पर्टिनेंट कि वाई शुड एनी वन हायर यू या व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू ऐड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। और जो आपका CV है, CV में तो आप डिटेल दे सकते हैं, रिज्यूमे इट हैज़ टू बी 1 या 2 पेजेस मैक्सिमम। CV को तो आप 3-4 पेजेस का भी बना सकते हैं। एंड देन हर चीज़ आपने जो है ना अपने CV में नहीं डालनी होती। देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपने इंटरव्यू के लिए छोड़नी होती हैं। यू कैन ऑलवेज डिस्कस द डिटेल्स इन इंटरव्यू अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये सर्टन स्टेजेस होती हैं जिनसे आपको गुजरना होता है एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर फॉर दो स्टेजेस। सो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो फिर हो ही नहीं सकता आपको कोई जो है ना रखे, बट देन अगेन आपकी स्किल भी होनी चाहिए। ओके, लेट मी टेक अशोक कुमार कमेंट। आप कह रहे हैं गिविंग बैक इज़ एन एक्शन ऑफ बोथ mentally and physically, the way to get to know the people surrounding. We have the opportunity to meet lot of people working and taking care about improving the surrounding. अच्छा जी, आपने तो बहुत ही बड़ा लिखा है। चलो ठीक है, मैं इसको पढ़ भी लेती हूँ। आप जो कह रहे हैं अशोक कुमार, आप सही कह रहे हैं कि येस, दिस इज़ व्हाट इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। एंड काजी नदीम अशरफ जो है आपको जो है सेकंड कर रहे हैं एंड ही एग्रीज कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस एंड आई लाइक दिस कि भाई आप जो है ना इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक। और लेट मी सी और क्या आप जो है कर सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई इस तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और येस, बेनिफिट्स जो है इसके क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स तो जो है कई हो सकते हैं। बेनिफिट्स जो है इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि भाई आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको हैप्पीनेस आप फील करते हैं व्हेन यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। सो हर एक की हैप्पीनेस का लेवल डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो है देकर एंजॉय करते हैं, दे फील नाइस व्हेन दे आर गिविंग समथिंग बैक टू द कम्युनिटी, दे आर एडिंग वैल्यू इनटू पीपल्स लाइफ। एंड देन देयर आर अदर पीपल जिनके जो है दे फील डिफरेंट, दे हैव अ डिफरेंट एनर्जी एंड दे फील डिफरेंटली while they are giving back. Then again, everything it leaves a positive legacy. जब आप जो है चले जाते हैं, आप नहीं भी रहते, तो आपकी जो वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन होती है या आपने जो कुछ जो है किया होता है, लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट यूट्यूबिंग। अब यूट्यूबिंग पे जो आप वीडियो शेयर करते हैं या अपलोड करते हैं, दोज आर द वीडियोज जो कि हमेशा रहेंगी। It's the value you're adding into people's life. So for that reason, you also have to be very, conscious
कि भाई व्हाट वैल्यू आर यू एडिंग। अगर आप वैल्यू पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू लर्न आउट ऑफ दोज वैल्यू। बट अगर आप कोई नेगेटिव जो है वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उससे जो है कोई सीखेगा नहीं, रादर जो है ज़िंदगियाँ लोगों की ख़राब हो जाएंगी। एंड देन यू आर गोइंग टू बी क्वेश्चनेबल कि भाई आपने तो ये जो ऐड किया कंटेंट, जिस उसको तो मैं जो कंटेंट कहूँगी, क्योंकि दैट्स नॉट वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हैं। वैल्यू वो होती है जिससे लोगों की ज़िंदगी इंप्रूव होती है। तो अगर आपकी वीडियो से किसी की ज़िंदगी इंप्रूव नहीं हो रही तो उस चीज़ के लिए भी यू आर गोइंग टू बी अनस्टेबल। सो ऑलवेज बी कॉन्शियस, क्योंकि हमारा जो ज़मीर है वो हमेशा मलामत करता है। वक्ती तौर पे मे बी आप जो है किसी शॉर्ट टर्म गेम के लिए तो ये काम कर लें, बट इन द लॉन्ग रन आपका जो ज़मीर होगा, आपका मीन्स द जनरल पीपल जो कि नेगेटिव ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं, नॉट द पॉजिटिव पीपल। क्योंकि जो पॉजिटिव पीपल होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, दे आर ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन एम्पावरिंग पीपल इन द राइट डायरेक्शन। तो जो रॉन्ग तरीके से जो है गेन करना चाह रहे हैं या फेम हासिल करना चाह रहे हैं, वो जस्ट शॉर्ट टर्म होता है। उसका जो है ना ही उसका मज़ा होता है, और जो ज़मीर मलामत करता है वो उसके अलावा। जब इंसान को ऑब्वियसली होश आता है, उससे पहले अगर होश नहीं आता तो उनका ज़मीर भी मलामत नहीं करता। बट देन यू नो वन इज़ ऑलवेज आंसरेबल टू द पब्लिक। तो पब्लिक तो सब कुछ देख रही है, एंड देन पब्लिक से ऊपर भी कुछ है जो कि आपकी जो डीड्स हैं, जो कि एट द एंड द ग्रेव आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। तो जो भी आप करें इन लाइफ, यू हैव टू बी अवेयर कि आखिरत में आपने इसका जवाब देना है। तो नेवर गो फॉर दी एक्सट्रीम साइड, ऑलवेज ट्राई टू बी मॉडरेट, जो कि हमारी टीचिंग भी है। Be a moderate person and add value into people's life in the positive way. So this is all what I wanted to share in today's topic. Or if you like today's topic, so you can let me know via your emojis, via your stars, and via your comments जो कि आपने मुझे already दे दिए हैं। और अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो you can let me know and let me see if I can bring someone on camera live, अगर मैं आज किसी को ले सकूँ। Let's see. Okay, Ashok Kumar, I'm going to try to bring you live on camera. Let's see अगर आप ऐड हो जाए। Still adding. There is some kind of signal issue. Yes, it's fine. So, okay, I guess there's some kind of signal issue क्योंकि आपकी साइड से जो है वीडियो भी जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। तो नो वरीज। So I guess आज के लिए जो है let's call it a day, and I'll see you again on today was Tuesday. Yes, I was supposed to be here yesterday. Okay, still I'll see you on Thursday, or then let's see what topic I can cover. And in the meantime, अगर आपके ज़हन में कोई topic है which you want me to cover, so you can always put in your suggestions and comments, and I'll take those topics. I'll see if I can talk on them, or and it's part of this transformational series. So let's see what we can talk about on Thursday. Okay, Ashok Kumar, आप कह रहे हैं it's almost okay. It's fine. Uh, that's not a problem. It's okay. So I'll see you on Thursday. Till then, bye bye and take care. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक YouTube को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। बट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर जाएँ, वहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, जो आपकी पसंद की वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें और एंड तक देखें, एंड देन आप उसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो इट कैन बी काउंटेड कि भाई आप बॉट हैं, आप ह्यूमन नहीं है। तो डोंट वांट टू गेट इनटू दैट निटिग्रिटी। तो उसको प्रॉपर तरीके से जाकर देखकर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।